All right. Assalamu alaikum, everyone. This is Mudassir. My full name goes with Mudassir Ahmed Mohammed. You can address me by Mudassir. I'm a Microsoft certified DevOps engineer, and I've cracked a bunch of certifications from Microsoft. And right now, I'm serving as an assistant manager in one of the leading MNCs. So I have about 9 years of experience with Azure. So I'll try to put all my good in experience and all the knowledge that I have onto the table so that it may help you going forward anywhere in your life from the professional perspective. So let me just quickly start by telling you out what exactly why exactly we are here and what exactly made us to unite together is all because of the CGC platform. You know that CGC is mainly it's an NGO that has been serving a lot of professionals around the corner since if I go by on record or on paper stuff, I'm with CGC for about good 7 years, for the last good 7 years, and I think more than that, but I definitely remember 7 years. We have been visiting colleges, engineering colleges back then to help final year students or engineering students understand what they aspire to be. And in my knowledge, like there have been perpetual sessions from CGC in terms of how we can uh, help the professionals in terms of their confusion in proceeding forward. So this is the right platform that you guys are here, not just you need for a good job, but also a good guidance. So that's about it. I don't want to be a textbook person under, praising CGC for what it has achieved, but it's there on your screen. So, and more than that, the volunteers and the responsible persons from CGC are the right impersonation of what CGC looks like. I'll just quickly move on to what my session is. So how I have planned this session is I'll try to cover what DevOps is, and then we'll move out understanding what cloud is. Okay, so mainly let's understand what DevOps is basically, right? Since past couple of years, like I would say from 2013 to 2014, this term called DevOps started booming out in the market. People started understanding कि भाई, what exactly is DevOps and how it is impacting the industry. So there was no such team called DevOps back then. People started working what it essentially meant to be. But you know since 2015, this term DevOps started booming out in the market. People started attending institutes, attended training to learn, understand what exactly DevOps is, etc., etc., etc. But not just going directly into the ocean. Let us understand where this DevOps team comes into the picture. We all know that there is a project. Okay, throughout my session, let's understand. We will have to hypothetically assume few things. So just be keep in your mind that there is a company that you own, and there is a project that you run. Okay, you are the project manager, and hypothetically speaking, there is a orchestrating sequence of all the things happening. Okay, there is a product called X, you are the project manager, एक company है जिसमें आप काम कर रहे हैं. Okay, this is the hypothetical situation that I want you to be with. Now coming to the terms, let's say there is a team developing a software called X. It won't just start building the software, right? There has to be a sequential steps that it needs to follow. What are those sequential steps? Firstly, we need to understand what exactly the requirements are. I cannot just go ahead and build the software X as per my requirements or as per my will and wish. I need to firstly understand what are the scopes, what are the requirements, and what is the plan. Secondly, I need to specify the budget. Thirdly, I need to understand how much time it's going to take. So there is a portfolio that I need to lay down. And from there, I need to hand it over to my team. From So there is a document called business requirement document or business related document. Generally, we call it as a DAD or BRD. There's so many terms in different companies. So एक document रहती,
जिस डॉक्यूमेंट में सब रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए रहते हैं। तो इन दैट डॉक्यूमेंट आपको ये दिखाया जाता है कि भाई इस रिलीज में, इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए। so that document will be passed on to the developers. Okay, now what developers will do is they will understand the functional concept. अब उनको समझाते कौन? उनको समझाते एक बिजनेस एनालिस्ट। ओके, बिजनेस एनालिस्ट ये वो टीम है जो डेवलपर्स से भी मेल झेल रखती है और क्लाइंट से भी मेल झोल रखती है। ओके, सो बिजनेस एनालिस्ट उनको समझाते हैं कि भाई दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, आपको सॉफ्टवेयर एक्स पे काम करना है। फाइन, नाउ डेवलपमेंट टीम अंडरस्टूड, तो व्हाट दे डू नाउ। अब जितना भी अभी तक मैं समझाया, दैट इज ऑल द फंक्शनल एस्पेक्ट। यहाँ से टेक्निकल स्टैंड विल ग्रो। डेवलपमेंट टीम को बताया जाता है कि भाई इस लैंग्वेज में आपको डेवलप करना है, इतने यूजर स्टोरीज हैं। अब ये यूजर स्टोरीज क्या है मैं समझाऊंगा। अब इस लैंग्वेज में डेवलप करना है, इतना टाइम आपके पास है, एंड दिस इज ऑल द एनवायरनमेंट दैट यू हैव। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। अब नाउ see, I'm trying to make it very easy, and I'll try to also inject some important concepts, so please pay attention. Now, let's say there is a team of 5 developers. एक development team है जिसमें 5 बंदे हैं, बंदियां हैं, whatever. तो there are 5 developers working for that product called X, जिसमें one developer is working on one feature, the other working on second feature, third one is working on third feature. So they all are working on different features. Now the problem comes is, एक मैं डेवलपर हूं, मान लो मैं अपने लैपटॉप में कोडिंग कर रहा हूँ। फाइन, एक आप डेवलपर हैं, आप भी अपने लैपटॉप में कोडिंग करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन नॉट जस्ट रिलीज माय फीचर ना, आई हैव टू क्लब माय फीचर्स, माय कोड विद योर्स। सो अब एक चैलेंज है। व्हाट इज द चैलेंज? आई नीड टू क्लब माय कोड विद योर्स। ओके, एंड व्हाट इफ मेरे लैपटॉप में मैं काम करते हुए 10 दिन काम करा, एंड 11th डे लैपटॉप क्रैश हो गया, सारा कोड चला गया। So that's the another challenge. There is no backup of the code. So now there are two major concerns I have. One is I need to save my code, not just locally, but also globally with all the securities. Secondly, code मेरा complete हो जाने के बाद I need to merge my code with the actual feature that the other developer is working on. How do I do that? This is achieved using a thing called a repository. We call it as code repository. अब मैं if I give examples, you will understand more clearly maybe. The examples would be code repositories that we have at the widely used is Git, GitHub, Bitbucket, etc. Previously, we used to have, back in those days, we used to have CVS. उसके बाद में SVN आया, उसके बाद में अब Git चल रहा है, and probably with the way it is built, it will go wide and wide. Okay, so please understand the fact that we need a repository. Why we need a repository? Not just to save my code locally in my laptop to protect the code, but also to merge my code with the other features. अब merge कैसे करेंगे सर? merge इस तरह करेंगे कि मैं एक ब्रांच बनाऊंगा, आप भी एक डेवलपर है, आप भी एक ब्रांच बनाएंगे। अपनी मैं ब्रांच में मैं अपनी फीचर्स डाल के लोकली उस ब्रांच में जो इंटरनेट पर है, जो github.com या जहां पर भी आपकी कंपनी का कोड बेस है, वहां पे मैं कमिट कर दूंगा, पुश कर दूंगा। तो मेरे लैपटॉप से कोड गया जंप होकर के ग्लोबली, मतलब इंटरनेट पे गया सिक्योर वे में। ओके, इट्स नॉट पब्लिकली एक्सेस। सेकेंडली, जब मेरे को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोड मर्ज करना है, I can easily do that by raising a pull request. एक चीज होती है pull request. If I raise it, the code will be merged. So at the end of the day, I will have I will have a capability to collate all the code together and release it as a single bundle. This is all helped with the thing called Git. ठीक है, यहाँ तक समझ में है? Then अब ये मान लो कि Git में मेरा कोड बेस आ गया। उसमें Git में आने के बाद नेक्स्ट क्या? अब गिट में जब कोड आया है तो इट्स ऑल द रॉ कोड, सब मतलब कोड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा रहेगा या फिर कुछ पाइथन में कोड है, इट्स ऑल रॉ कोड। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन नॉट बी फंक्शन, राइट? इट्स जस्ट रॉ कोड। अब उसको हम क्या करेंगे सर? वी विल बिल्ड दैट कोड। यू सी द थिंग कॉल्ड बिल्ड हियर, यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ है। आई एम कवरिंग वन बाय वन इन सीक्वेंस। हम बिल्ड करेंगे। सो नाउ व्हाट इज बिल्ड? इफ एनीबडी आस्क्स यू डेवऑप्स में कि व्हाट इज बिल्ड,
then you just have to say in the process of compilation is called build. Now the next question would be, hey bhai, what is compilation? You need to tell them it, the process in which we convert a raw code into an executable format is called compilation. And if you are doing the compilation, that is nothing but building the code. I'll give you an example. I just write down a piece of code. Okay, रात भर बैठ के मैं कोड लिखा और वो कोड कैलकुलेटर का है. ठीक है, आई नीड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कैलकुलेटर जिसमें ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब परसेंटाइल ये सब ऑपरेशंस हो सकते हैं. फाइन. अब यू सेड मी मुदस्सिर भाई आई नीड कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम. ठीक है, मैं आपको सारा का सारा कोड भेज दिया. मैं बोला कि चलो इसको रन करके बताओ. आप हंसते हुए मेरी तरफ देखेंगे कि हाउ कैन आई रन दिस कोड. मेरे को इसको पहले एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. अगर मैं डॉट नेट में लिखा तो डॉट ई बनाना है, अगर जावा में लिखा तो डॉट वार बनाना है या डॉट ई बनाना है, वॉट एवर. तो जो एंड प्रोडक्ट रहता जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके. दैट पर्टिकुलर बंडल इज कॉल्ड एज आर्टिफैक्ट. डेवऑप्स की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं उसको आर्टिफैक्ट. जब हम आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग. ओके, कोड आ गया. आई रिपीट वन मोर टाइम. कोड है आपके पास, रिपोजिटरी है, 6-7 डेवलपर्स काम कर रहे हैं टीम में, कोड पुश कर रहे हैं. देयर इज अ सिंगल ब्रांच जहां पे सारा कोड मर्ज होके है. वहां से आप बिल्ड करेंगे. बिल्ड करने के बाद आप एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करेंगे. अब उस आर्टिफैक्ट का क्या करना है? ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, आर्टिफैक्ट का क्या करना है? अब उस आर्टिफैक्ट को आपको सर्वर्स में डिप्लॉय करना है. अब क्या रहता कि एज इन व्हेन डिफरेंट कंपनीज आर कंसर्न, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स रहते हैं. अब ये एनवायरनमेंट्स क्या है, टीम्स क्या है, आई विल एक्सप्लेन. जनरली देयर विल बी एन एनवायरनमेंट कॉल्ड डेव, there will be an environment called QA, there will be an environment called pre-prod, there will be an environment called prod. Just try to listen to me and accept the points. Slowly you will understand, okay? I don't want to start from zero. This is the new way I'm adopting to explain because I'm all going against the slides. So I hope that after 5 minutes you will connect all the dots. Just be patient with me, please. So there will be bunch of environments. Okay, dev, QA, pre-prod and prod. Prod क्या है? बस इतना जान लो आपकी prod is the live environment जो customer facing है, वो एक environment. अब सर ये environment क्या चीज का नाम? एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म जिसमें आप आर्टिफैक्ट डिप्लॉय कर सकते. ओके, अब मैं आपको दिया .exe फाइल, मैं बोला चलो भाई रन करके बताओ. अब हंसेंगे मेरे ऊपर कि भाई आई नीड टू एक्चुअली मतलब एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं .exe डबल क्लिक करा तो तब वो ओपन होता. इट्स सेम लाइक मैं आपको यूएसबी दिया, यूएसबी में कुछ MP3 फाइल्स हैं और मैं बोला आपको सुन के बताओ मेरे. तो यू विल लाफ एट मी एंड से I need to inject this USB to any laptop, TV, or any device. That that MP3 file is my artifact. Okay, and that computer, TV, or DVD player is the environment जहाँ पे आप inject करके वो MP3 file play कर सक रहे हैं. So similarly, when I produce an artifact, I need to have an environment. So why we are calling it as 4 different names, sir? Dev, QA, pre-prod, and prod, because of 4 different aspects of its journey. डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट्स ओनली ओपन टू डेवलपमेंट टीम. जहां पे ये लोग क्या करते हैं, एक तो उनका लैपटॉप है जहां पे दे आर वर्किंग ऑन देयर लोकल ब्रांच, बट जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो दे नीड अनदर लैपटॉप. तो लैपटॉप के बजाय उनको एक सर्वर दे देते. सर्वर में दे डिप्लॉय दैट आर्टिफैक्ट, दे रन दैट आर्टिफैक्ट. अब दे कैन सी ऑल द फीचर्स. जो 5 डेवलपर्स हैं तो 5 के 5 लोगों के चेंजेस देख सकते हैं एक साथ. ओके, एंड दैट एनवायरनमेंट इज एक्सक्लूसिव फॉर डेव टीम. अब क्यूए किस लिए है सर? सेम आर्टिफैक्ट जब वो डेवलपर्स बोलते हैं इट्स ऑल गुड, उठा के हम क्यूए में डालते हैं. क्यूए में डालने के बाद क्यूए टीम बोलती है कि वी विल रन सम टेस्ट. नाउ यू सी दिस वन, दिस आइकन टेस्ट. तो हम बोलते हैं कि टेस्ट करेंगे. टेस्टिंग्स मतलब दे डू ऑल द स्मोक टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट, ऑल nonsense they will do with their automation suite or that and this, which is good. Okay, which is good for the final product.
So there is a rivalry between developers and QA because QA team will say यहाँ पे ये bug निकला है, and then the developers will say no, 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 this is not the right way. So there is back and forth discussion that happens between dev and QA. Okay, and QA team, when they run the tests, it is all in the QA environment. Fine. Now what is pre-prod? Pre-prod is very much identical to production. We cannot just release to prod, right? We need to test the same scenarios, same environment, same ambience, just like production. And we will dump that artifact, same artifact, हम प्री prod में डालेंगे, so that यहाँ पे load testing होती है. Now QA team, what will they do? They will send fake traffic. Just like, now I'll give you a quick example of an application called Hotstar. We all have been watching World Cup on Hotstar these days, right? We are watching cricket on Hotstar. You see, वहाँ पे top right में लिखा रहता है 70 lakh people watching, 80 lakh people watching. So now tell me, did Hotstar not prepare itself for that much of traffic? You will say, why not, Mudassib? Obviously वो लोग हम prepare करे होंगे. So my question is, how did they test कि भाई 70 लाख की traffic अगर देखी Hotstar को, it won't crash, it won't crash. तो how they will do? They will do it with the help of load testing. यहाँ पे ये लोग फेक ट्रैफिक सेंड करते हैं, जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, लोड टेस्टिंग भी बोलते हैं. आई एम नॉट दैट गुड इन द QA concepts, but then this is a very vital aspect. So they will do a lot of fake trafficking, and then they will see how the application is behaving. Is the artifact crashing? Is the portal crashing? If not, then it's all good. Then they will certify. So this already happens in pre-prod environment. Okay. Now I'll give you one more scenario in terms of Hotstar. अभी क्या होता है ना कि when you do a live stream, just like Hotstar, it's displaying the live cricket match of Indian cricket team. So you see, it never hangs in between. So many people are watching. किसी को कहीं भी abruption नहीं होता. Neither the streaming is stopping. Probably it may due to our old internet bandwidth, but it never stops by itself, right? How is it happening? How the Hotstar, being such a big company, ensuring que live streaming is so smooth? How do they do that? Firstly, they'll create the same scenario in pre-prod environment. They'll do all the needful testing, and when they are fine with all the equipments, they will release it to the production environment. Production, जैसे मैंने बोला, it is customer facing. The one which you download in Play Store or App Store, that is the production environment. So Hotstar जहाँ से download होता, that source is the production environment of Hotstar. Now understood? Firstly, we will plan, we will give it to the development team. They will write the code in a repository. उसके बाद में हम उसको compile करते हैं, artifact बनाते हैं. Then that process is called as build. Then we give it for testing. उसके बाद जो मैं बोला ना कि dev में deploy करते, then same artifact QA में डालते, फिर same artifact pre-prod में डालते, all the necessary sign-offs मिलने के बाद हम production में डालते हैं. That is called as release and deploy. I'm covering both the aspects here. The one is release and the other is deploy. उसके बाद में क्या होता है कि once the artifact is deployed to production team, production environment, I beg your pardon, production environment, उसके बाद में कुछ minor hiccups आते रहते हैं. Okay, there is no software in the world which goes without any hiccups. माइनर हिकअप्स आते रहते हैं, एंड दैट इज टेकन केयर बाय द ऑपरेशंस टीम, जिसको हम जनरल टर्मिनोलॉजी में सपोर्ट टीम बोलते हैं. ठीक है. दे वर्क ऑन इंसिडेंट्स, टिकट्स, कस्टमर के कॉल्स लेते, L1 L2 L3, दैट कम्स देयर. ये सब जो मैं जर्नी बताया आपको, अब यहाँ पे डेवऑप्स आके किधर बैठता है? आप तो बोले डेवलपमेंट टीम डेवलप करती कोड, ओके. आप बोले QA टीम टेस्ट करती, ओके. फिर ऑपरेशंस टीम जो है incidents solve karte, okay. How is DevOps coming into the picture? Firstly, there are two things I just want to bring in your kind attention. First things first, DevOps is the binding team to all the other teams. DevOps connects with development, DevOps connects with QA, DevOps connects with support. Okay, point number one. Point number two, what is the main role of DevOps? अगर मेरे को कल DevOps को move होना है, तो what I need to learn? I need to understand how the build is happening. देखो sir, developers code push करके repository में रुक जाते हैं. DevOps come into the picture and they build it. They build it, they produce an artifact, and DevOps come into the picture and they release the artifact and deploy it to the environments. So QA team जब आके test करते.
So DevOps is the team that not just builds but also deploys by maintaining the environments. What I mean to say by maintaining, sir, they maintain the platforms जिसमें deploy किया जाता है. कल के दिन अगर वो platform में कुछ issue आता है, which team will come? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलपर्स को पूछेगा कि भाई वो सर्वर क्यों काम नहीं कर रहा? नो, डेवऑप्स को पूछा जाएगा. सो it is not just a team that binds the other teams but also responsible for build and deployment. अब मैं आपको मालूम है ये इतना सब जो समरी आपके सामने रखा, I have covered a lot of textbook words. Now let me put one by one. एक तो मैं बोला आपको व्हाट इज बिल्ड. बिल्ड का मतलब ये है कि हम एक कोड बेस को, रॉ कोड को कंपाइल करके आर्टिफैक्ट बनाते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बाय कंपाइलिंग इट in order to produce an artifact is nothing but build. Okay. Secondly, what is deployment? Deployment is nothing but whenever I have the artifact ready, I'll just push it or dump it into an any server. वो सर्वर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हो सकता है, क्यूए एनवायरनमेंट का हो सकता है, प्री prod एनवायरनमेंट का हो सकता है, या prod एनवायरनमेंट का. Fine. Now there is a very common word or booming word in the market, that is CI/CD. You know, there is no DevOps interview without being asked like what is continuous integration and what is continuous deployment or delivery. You know what is CI/CD, CI/CD, CI/CD. इतना शोशा हो गया मार्केट में CI/CD, CI/CD, but they never clearly understand what is CI/CD. इतनी बैकग्राउंड के साथ, if you clearly understood what I apparently had conveyed you in the last 15 minutes, अगर ये बैकग्राउंड आपके अंदर स्ट्रांग है, तो just listen to my definition of what CI and CD is. CI is, एक तो आपके पास कोड है ना, जब डेवलपर्स कोड पुश कर देते हैं, so what CI means is आप कोड पुल करना, उसको बिल्ड करना और इमीडिएटली ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पुश भी कर देना. सो एज इन व्हेन, अगर मान लो कि आप डेवलपर है, ओके, आप डेवलपर है, कोड लिख दिए, रेपोजिटरी में पुश कर दिए, तो इमीडिएटली जैसा आप पुश करें उसको हम बोलेंगे कमिट करें. कमिट करते ही CI/CD should come into the picture. वो CI essentially means it, DevOps टीम क्या करती कि उस नए चेक-इन्स को, उस नए कमिटेड कोड को पुल करती, बिल्ड करती और इमीडिएटली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डाल देती. वाओ. जनरली पीपल व्हाट मिस्टेक हियर इज CI मतलब वो बिल्ड के बारे में बोलते हैं, जैसे कि कोड आ गया रिपोजिटरी में, दे पुल द कोड, दे बिल्ड इट एंड दे प्रोड्यूस द आर्टिफैक्ट. नो, दिस इज हाफ डेफिनेशन ऑफ CI. नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग द आर्टिफैक्ट बट आल्सो आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय भी करना है. दैट इज CI. नाउ व्हाट इज CD? Continuous delivery or continuous deployment, there are two different aspects but I'll give you a midway. इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोड रेडी है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो गया, डेवलपर्स बोले सर हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स हमको मिले थे, दे आर वर्किंग एज रिक्वायर्ड, जैसे एज वी वर विलिंग एंड विशिंग, they are working in the development environment. This artifact is now certified. Version 1 is now certified. अब immediately जैसे ही वो लोग बोलते हैं आपको V1 जो आर्टिफैक्ट है वो आप QA में डाल देना, प्री prod में डाल देना. तो this immediate effect with the help of pipelines. अब ये पाइपलाइन क्या सीन है सर? पाइपलाइन इज नथिंग बट द जॉब. जॉब मतलब जिसमें आप ये एक्टिविटीज लिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि पुल द कोड, बिल्ड इट, डिप्लॉय इट, ये जो टास्क हैं, ये टास्क को एक जगह पे लिख रहे हैं, आप एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं, उसको पाइपलाइन बोलते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ए पाइपलाइन इज. तो उस पाइपलाइन के जरिए आप इमीडिएटली वो आर्टिफैक्ट डेव से, नॉट डेव से उठा के, बट डेव में जो था वही आर्टिफैक्ट क्यूए में डाल रहे हैं, प्री prod में डाल रहे हैं, और जो भी एनवायरनमेंट है आपके पास उसमें डाल रहे हैं. तो उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे CD. तो दिस इज व्हाट इज CI/CD. तो ऑब्वियसली राइट, अभी तक जो भी बताया गया था ऑलमोस्ट कवर हो गया, बट टेक्स्ट बुक में इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, CI/CD, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर डेफिनेशन दैट आई विल कम इनटू डिस्कशन फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड्स. ये जो समरी मैं आपको दिया, दिस इज व्हाट DevOps इज. ओके, and I think I forgot about the monitor part.
सो whenever आप मतलब प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाने के बाद ऑब्वियसली इट इज कमिंग आफ्टर ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्शन का ही सिनेरियो कंसिडर किया जाएगा। तो ऑपरेशंस वाले जब भी देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन बिहेव नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन डाउन है, तो दे शुड बी सम टूल, राइट, दे शुड बी सम टूल जो मॉनिटर करें हेल्थ ऑफ द एप्लीकेशन, हेल्थ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ ऑफ अदर एस्पेक्ट्स जो मैं आगे कवर करूंगा, वो मॉनिटरिंग में आएगा। सो देर आर नॉट जस्ट CI/CD, there is CT also, continuous testing, there is CM also, continuous monitoring. There are so many other things that at present DevOps has come into. Okay. So I'll try to see what exactly the other slides are. I think I covered most of the things. I wanted to cover about this waterfall model, agile model, but it would be a lot of lengthy discussion. So I'll try to summarize this. पहले क्या होता था कि waterfall model में this is like जो मैं आपको समझाया ना, पहले क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट्स लेते, हम उसको एक डॉक्यूमेंट बनाते, BRD डॉक्यूमेंट बनाते, तो वहां पे दिस कम्स इनटू पिक्चर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। एक साइकिल बना लो अपने माइंड में, ठीक है, आई रिपीट दैट साइकिल, वो साइकिल आप अपने जहन में रखिए, सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स। देखिए सर, मेरी ये बात आप पेन पेपर से लिख लो। अगर डेवऑप्स समझना है तो फंक्शनली अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करिए। इफ यू आर नॉट फंक्शनली grounded in the concepts of DevOps, you won't understand DevOps for a very long time. See, I completely understand that there are so many tools in the market, there are so many softwares in the market that I need to learn, I need to understand. But if I'm not functionally equipped with the concepts, I won't be able to understand half of any tool. आई एम टेलिंग यू दिस। फंक्शनली समझिए, अपने माइंड में लाइन उतारिए, पाइपलाइन उतारिए कि what phase comes after what phase. If you understand it clearly, then you will know, अच्छा ये टूल इधर आके बैठता, ओ ओके, अच्छा ये टूल इधर। अब जैसे मैं बोला कि बिल्ड है, तो बिल्ड के लिए कितने टूल्स है। अब कल के दिन में कोई सवाल करा, भाई ये टूल के बारे में बताओ, तो you will swiftly understand, oh, this is a build tool, this is used for build, this is not for monitoring, this is for build. So that comes after you understand the sequence. Okay, now let me tell you the sequence. So sequence is firstly understanding the requirement, that is planning phase. ओके, अब प्लान करने के बाद आप क्या करते हैं कि डेवलपर्स को एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं। वो डॉक्यूमेंट के जरिए कुछ उनके नाम पे वर्क आइटम्स बनाते हैं कि भाई 6 यूजर स्टोरीज हैं, 6 यूजर स्टोरीज मतलब फीचर्स, 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 यूजर स्टोरीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ 6 डेवलपर्स के लिए। तो दे वर्क ऑन दोज यूजर स्टोरीज, बेसिकली राइटिंग द कोड। तो first is planning, second is understand creating the documentation and all, and then third is writing the code, fourth is building the code, fifth is testing the code locally, and then उसके बाद में आता है releasing the code, releasing nothing but creating the pipeline for release। उसके बाद में deployment to the environments। उसके बाद में आता है operations is nothing but जब सपोर्ट टिकट्स वगैरह हैंडल करने का सीन आता, उसके बाद में मॉनिटरिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में लास्ट स्लाइड में आई विल टेल यू ऑल द टूल्स। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि भाई जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, द फर्स्ट फेज प्लानिंग करते थे, उसके बाद में डिजाइन करते थे, डेवलपमेंट करते थे, टेस्टिंग करते थे, मेंटेनेंस करते थे। तो पहले क्या होता था कि रिक्वायरमेंट में कुछ दे दिए, उसके ऊपर डिजाइनिंग बना दिए, डेवलपमेंट शुरू हो गया, टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। अगर टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, दोबारा फर्स्ट स्टेप को जाना पड़ता था। तो पिछले जो 6 महीने से काम हो रहा था सब गया तेल लेने। तो आपको 6 महीने वेस्ट हो गए थे जस्ट बिकॉज टेस्टिंग में कुछ इश्यू आ गया। तो इसको ओवरकम करने के लोग क्या करें, एजाइल मेथोडोलॉजी निकाले कि भाई सब पैरेलली चलेगा, कि रिक्वायरमेंट चंक्स में दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको टेस्टिंग भी चंक्स में साथ साथ करना रहेगा। इटरेशंस बना दी, एक इटरेशन में इतना काम, एक इटरेशन में इतना काम, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं आप अपने बड़े से टास्क को। उसके बाद क्या हुआ, स्क्रम प्रोसेस आ गया। स्क्रम में क्या हुआ, एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। मैं जैसे बता रहा था ना, यूजर स्टोरी, प्रोडक्ट बैकलॉग, ये सब डेवलपर्स के लिए है कि भाई बैकलॉग मतलब जैसे इंजीनियरिंग के बैकलॉग थे ना हमारे, वैसे ही यहाँ पे भी बैकलॉग्स रहते कि भाई कितने आइटम्स लेफ्ट आउट हो रहे हैं। छह छह यूजर स्टोरीज बनाए थे, उसमें से कितना बैकलॉग बन रहा, तो कितने टास्क हैं उसमें, एक्सेट्रा। ओके,
एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको हम स्क्रम बोलेंगे। स्क्रम इज नथिंग बट एजाइल के ऊपर का ही आइसिंग ऑन द केक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम द एजाइल ओनली। तो उस तरह से मैनेजर्स डिसाइड करें कि जब रिक्वायरमेंट आएंगी तो एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक किस तरह जाया जाए। हाँ, अभी मैं आपको डेवऑप्स कवर कर दिया सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट डेवऑप्स टेल मी। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट some discussion on Azure. If you have any questions, let's roll it out for 5-10 minutes. We can address them. No question? How the security is incorporated in DevOps? Okay, good question. So there are two types of securities. One security is of the application and the other security is of the infrastructure. Okay, so let me talk about the security of the infrastructure first. अभी क्या है ना कि अगर मेरे को एक सोफा खरीदना है, तो मैं सोफा खरीद के या तो रोड पे रख सकता हूँ या घर के दीवान खाने में रख सकता हूँ। ठीक है, सोफे की सिक्योरिटी क्या है? सोफे की सिक्योरिटी ये है कि आई नीड टू कीप अ वॉच, कि कोई स्क्रैच नहीं करना, कोई फाड़ना नहीं। that is the security of my sofa. But what if the security of sofa is concerned in terms of when I'm not there? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सब? जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन से मेरे को कवर करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई रोड पे रखने के बजाय मेरे को एक ड्राइंग रूम में रखना पड़ेगा। ओके, सो ड्राइंग रूम एक जो प्लेस है वो एक एनवायरनमेंट है मेरे लिए। सोफा इज माय कोड, सो आई कैन जस्ट प्रोडक्ट माय एप्लीकेशन बाय इट्स ओन securities, or I can provide security to my infrastructure. Now I'll tell you क्या रहता है कि when I develop the code, ठीक है, there are so many cyber approvals I need to get. Every company has this. अब देखो भाई कि मैं कोड डेवलपर हूँ, कोड लिख दिया, बिल्ड भी हो गया, अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी आ गया। साइबर टीम एक सीआईडी टीम है जो बैठी हुई रहती। वो लोग हम बोलते हैं कि आप जो करना है करो, डेव क्यूए प्री प्रोड में, प्रोडक्शन में हमारे अप्रूवल के बगैर नहीं जा सकते। ओके फाइन। अब मेरे को प्रोडक्शन में डालना है तो उन लोगों से मीटिंग रखना पड़ता। मीटिंग रख के पूछना कि भाई बताओ आपके क्या डिमांड्स है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा एक स्कैन है, आप स्कैन रन करिए। वो आपका पूरा जो कोड लिखे है ना, जितने भी लाइंस ऑफ कोड है वो पूरा स्कैन करता, जिसको हम जनरल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्टैटिक स्कैन। ठीक है, स्टैटिक स्कैन रन होता तो एक रिपोर्ट आती सिक्योरिटी स्कोर की, कि भाई आपका कोड कितना वल्नरेबल है, कितना सेफ है। तो अगर वल्नरेबल है तो क्या होता मालूम है? सीधा सीधा मुंह पे मार देते हैं, बोलते हैं कि इसको फिक्स करो, अदरवाइज वी वोंट लेट यू गो टू द प्रोडक्शन टीम। इट्स जस्ट लाइक सीआईडी। ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ योर सोफा। एंड द अदर सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ माय रूम, कि भाई प्रॉपर्ली लॉक्ड है नहीं है, विंडोज ठीक तरह से बंद है नहीं है, लाइट फैन है नहीं है। दैट इज नथिंग बट द सिक्योरिटी ऑफ माय इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो कोड में डेवलपमेंट क्यूए प्री प्रोड में डिप्लॉय कर रहा हूँ या प्रोड में डिप्लॉय कर रहा हूँ, वो जो प्रोड एनवायरनमेंट है विच हैज द सर्वर्स, आर दे वेल इक्विप्ड और नॉट, उसके लिए भी वो लोग बोलते हैं सिक्योरिटी स्कैन है, रन करिए। ओके, तो वो स्कैन भी रन करना पड़ता हमारे को इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेज जनरली that we can provide security to our application. Does that answer your question? Yes. Thank you. Any other questions? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सिली क्वेश्चन, ऐप और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस समझाइए ना। किसके बारे में? ऐप एंड सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस सर। ऐप भी बोल रहे हैं पर सॉफ्टवेयर भी बोल रहे हैं फिर। ओके, सो आई थिंक देयर आर वन एंड द सेम। ठीक है, हर एप्लीकेशन या हर सॉफ्टवेयर के कई कई रूप रहते हैं जिसमें वो एक्सेस किया जा सकता। आई देयर आर हाई लेवल पे मैं आपको तीन तरह के फेजेस बताता हूँ जिसमें एक सॉफ्टवेयर एक्सेस किया जाता। एक फेज है मोबाइल में, एक फेज है कंप्यूटर में, एक फेज है इंटरनेट में। अगर मोबाइल में एक्सेस किया जा रहा तो उसको एप्लीकेशन बनाना पड़ता। ठीक, मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। सेम एप्लीकेशन, सेम सॉफ्टवेयर, ओके, सेम थिंग। मोबाइल में एक्सेस किया जा रहा तो उसको मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं।
अगर लैपटॉप में एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं या क्लाइंट एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा हूँ तो ये वेबसाइट या पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि ब्राउजर ओपन करके मेरे को वो वेबसाइट रन करना पड़ता है। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे दे मीन वन एंड द सेम, लेकिन तरह तरह के मशीन्स में उसको तरह तरह का नाम दिया जाता है। वेबसाइट पे है तो उसको पोर्टल भी बोलते हैं। ओके, डेस्कटॉप पे है तो क्लाइंट एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एग्जांपल्स देते रहता हूँ मैं, ठीक है। मोबाइल में आप अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो आईट्यून्स है। आईट्यून्स आपका मोबाइल आईफोन में एक मोबाइल एप्लीकेशन बन के आता, करेक्ट। ओके, Yes, sir. जब आप लैपटॉप ओपन करते तो आईट्यून्स का एक सॉफ्टवेयर आपके आइकन बन के आता लैपटॉप में, जिसको आप डबल क्लिक करें तो आईट्यून्स ओपन होता। वैसे ही इंटरनेट पे गए तो iCloud.com पे से सेम आईट्यून्स एक्सेस हो जाता। तो एक ही सॉफ्टवेयर है, अलग अलग रूप है उसके, तो एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट द सेम थिंग। Okay, sir. Thank you. That was not a silly question, by the way. Any other questions? Don't worry, you won't miss the Azure thing. I'll explain you as much as I can. Don't worry. We'll have further sessions also, but don't lose this opportunity. Nobody knows you. एक दूसरे को कोई नहीं जानता. Although this session record हो रहा है तो आपकी कोई identity नहीं जानता. अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है DevOps के बारे में, आगे बढ़ना है, ask me. I'm openly telling you, ask me any questions. This Linux administration also comes in DevOps. Earlier we used to have a post called Linux admin. Now it is CK, certified Kubernetes admin. All this comes in DevOps. Yes, I would now say yes. Previously, as you rightly said, पहले तरह तरह के different teams होते थे, but आजकल DevOps वालों की एक प्रॉपर टीम बन रही और DevOps का स्कोप बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे मैं बोला, इफ यू रिमेम्बर और नॉट, आई डोंट नो, बट अभी मैं बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना भी DevOps वालों की ही जिम्मेदारी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सर्वर्स आइदर विंडोज हो सकते, मैक ओएस हो सकते, लिनक्स हो सकते। ओके, तो सर्वर की भी नॉलेज रखना जरूरी है। Linux admin nowadays also comes in DevOps, but it's not very much necessary कि भाई Linux आना जरूरी है DevOps सीखने के लिए। There's so many shades of DevOps, so it's not necessary that without learning Linux I cannot proceed in DevOps. ऐसा जरूरी नहीं है। Any other questions? Hello, Assalamu alaikum, sir. Welcome, salam, sir. Sir, this cloud computing is common for Microsoft and Google, AWS, is everything for common cloud computing? Yes. Now, what I'm going to explain is about the cloud computing. Okay, cloud computing के concept समझने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये this is how it works. अब जब when you understand this is how it works, you will also need to understand there are different companies offering their own products in terms of cloud computing. Now, I will say your question in itself is an answer. Amazon provides its own approach towards cloud computing. एक own product है उसका और एक ओन रोड मैप है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। माइक्रोसॉफ्ट वाले उनका खुद का है, गूगल वालों का खुद का है, अलीबाबा वालों का खुद का है। देयर सो मेनी अदर क्लाउड्स इन द मार्केट, bunch of clouds in the market. Okay, so they sell their cloud, but the concepts and the core would be the same, cloud computing. Any other question? To become DevOps engineer, we also need to learn database. No, you just need to understand how to run few queries, etc. Because you will have access to the server, they won't have access, so they will give you the queries to run and get the output. So अगर ABCD भी नहीं मालूम तो that would be a point of concern. थोड़ा बहुत सीखना, but it's not mandatory कि आपको database आना चाहिए। Stored procedures क्या है वगैरह वगैरह, it's not needed. There's a question from Syed Vikhar. If we choose open softwares, then how can security be maintained? Good question, Syed Vikhar. So every company has a list of approved open softwares that they would recommend. Apart from that, you cannot use the other open softwares. So like if I have a laptop, I cannot download all the open softwares, right? I need to understand कि भाई मेरी company
कौन से ओपन सॉफ्टवेयर अलाउ करने के लिए दे रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल I want to download Notepad++. So I cannot just go ahead and download, right? I need to understand whether this company allows Notepad++ or not, which is an open software. Similarly, in terms of all the libraries that I'm using in my code, firstly, I need to have a knowledge कि भाई कौन से libraries allowed है, कौन से libraries allowed नहीं है. If you don't read those documentation, what your company is asking or prohibiting, you will be caught when the static scan is happening. So the cyber team will say, hey, no, this open source library is not allowed, etc. Hope that answers. Any other questions? Let's make it more interactive now. I will explain about Azure Cloud and etc. But let's make it more interactive. Melissa, could you please explain some of the tools overview like we have Jensen? Yeah. I will explain. But I cannot give you a demo of the exact tools, but I can explain you in a nutshell. Okay. DevOps loop. Usi loop mein, we will see what are the tools that are fitting everywhere. Please watch my screen. The mostly widely used tools. Okay. Meanwhile, any other questions? All right, so let me start with cloud computing and let me start by Azure. Okay. So what is cloud computing basically? देखो सर, cloud computing का एक ही rule है कि they will provide you the infrastructure or the services. That's it. मिसाल के तौर पे let's go back to the example जहाँ पे मैं डिस्कस किया था कि MP3 फाइल है. ओके, मान लो कि मैं एक ऐसे बंदे को MP3 फाइल दिया जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है या DVD प्लेयर ही नहीं है, तब उन्होंने कैसे सुनेगा वो MP3 फाइल? So what you understand the gap here, right? He has the MP3 file, he has the file, song or whatever it is, it's an MP3 file. So he wants to he or she wants to listen that MP3 file, but they don't have a platform, they don't have any laptop, TV or DVD player, anything, MP3 player, nothing is there. What they would do, they would take a TV or a laptop or a DVD player on rent. ठीक है, रेंट पे लेके USB प्लग करते हैं, प्लग करने के बाद they would be able to listen to that MP3 file. That's it. That is cloud computing. So I have a software with me. Okay, that software I need to run, but I don't have servers, I don't have machines, I don't have all the equipments. What do I do? पहले के जमाने में क्या होता था कि एक डेडिकेटेड रूम रहता था जहाँ पे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स रहते थे, बड़े बड़े मशीन्स रहते थे और उनको ठंडे टेम्परेचर में मेंटेन करते थे, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता था. उस बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में से क्या होता था, वो सर्वर्स निकलते थे, सर्वर्स क्रिएट होते थे, निकलते थे मतलब नहीं, बट क्रिएट होते थे. लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. ओके, देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाइपरवाइजर. हाइपरवाइजर जब उस यूटिलिटी पे डाला जाता बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पे, विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर्स वी कैन क्रिएट सर्वर्स. जो अभी लैपटॉप में एक विंडोज सिस्टम देख रहे हैं ना, उसी तरह से एक रिमोट विंडोज सिस्टम भी आ जाता. दैट इज नथिंग बट द सर्वर, रिमोटली एक्सेसिबल. वाओ, रिमोटली एक्सेसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो आपका ऑन प्रेमाइज ही रहता था. ऑन प्रेमाइज का मतलब क्या है? लोकल. कंपनी खुद पे कर दे रही है उसको, कंपनी का डेटा सेंटर है, कंपनी का हाइपरवाइजर है, कंपनी का सर्वर है, तो इट्स एन ऑन प्रेमाइज. अब वो जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वन फाइन डे एक पर्सन आया, मिस्टर वाई. ओके, मिस्टर वाई आके बोले प्रोजेक्ट के मतलब कंपनी के सीईओ को कि भाई आप पागल हैं कि इतना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर मेंटेन कर रहे हैं आप, ये मंथली इतना लैक्स ऑफ कॉस्ट सिर्फ मेंटेनेंस में चले जा रहा है. अरे काम करिए आप, ये जिम्मेदारी मेरे को दे दीजिए. उन्होंने बोलेंगे, मिस्टर वाई हैरान हो जाएंगे, सॉरी कंपनी के सीईओ हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे कि मिस्टर वाई आप ये कैसी बात कर दिए, मेरा पेन पॉइंट छेड़ के एक फनी बात कर दिया आप,
एक तो मेंटेनेंस में कॉस्ट जा रहा, विच इज ट्रू, बट हाउ डू आई, मतलब उसका वर्क अराउंड क्या है, इसका तोड़ क्या है? तो मिस्टर वाई बोलते हैं कि सर जितना भी सर्वर्स आपको होना है ना, आप मेरे को बोलो, मैं देता हूँ आपको किराए पे। सिमिलरली वो जो एग्जांपल याद आ रहा आपको, MP3 फाइल किराए पे, कुछ DVD प्लेयर, MP3 प्लेयर मिलना, वाओ। कंपनी के CEO बोलते बट सिक्योरिटी का क्या? उन्होंने मिस्टर वाई बोलते मैं लिख के देता हूँ आपको सिक्योरिटी, I'll provide you all the security that you need, your all the securities that you have on prem, उससे ज्यादा मैं सिक्योरिटी देता हूँ, कोई ब्रीच नहीं होता। मिस्टर CEO बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या करना क्या है मेरे को? कुछ नहीं सर, मैं आपको सर्वर्स दूंगा with the help of my own cloud. Now cloud computing comes into the picture. अब उन्होंने ये बोलेंगे कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है X, अब उस सॉफ्टवेयर को या तो आप सर्वर्स में डालो, सर्वर्स में किराए पे देता हूँ, या फिर आपको सर्वर्स नहीं होना तो एक और सर्विस देता हूँ मैं, वो सर्विस का नाम है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ही दे देता हूँ मैं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर खुद बना के आपको दे देता हूँ। CEO सर हो जाते, परेशान हो जाते कि भाई मैं जो चाह रहा था इससे 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं। CEO बोलते कि भाई हेल्प मी अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस, सर्वर देते बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे देते बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर दे देते बोल रहे हैं। तो उसका मतलब ये है सर कि मान लो कि आप अब देखो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद अपनी सर्विस में डिफॉल्ट भी, ड्रॉबैक भी ढूंढ के दे रहे हैं। वो कैसा? मिस्टर वाई बोलते हैं कि भाई आप अगर सर्वर्स लिए, तो सर्वर्स अगर मान लो विंडोज के हैं, तो विंडोज में एवरी मंथ आपको पैचेस इंस्टॉल करना पड़ता, which will create downtime for your application, क्योंकि जब जब पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल होंगे, सिक्योरिटी पैचेस का मतलब क्या है? अपडेट्स। ओके, सर्वर्स अपडेटेड रहना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रहता हो एवरी मंथ सेकंड ट्यूसडे। तो अगर आपको पैचेस इंस्टॉल करना है तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डाउन टाइम आते रहता। तो सर्वर्स तो सस्ते रहते, बट पैचेस की एक वो जो मेंटेनेंस करना रहता वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसका तोड़ क्या है, उसका ऑल्टरनेट क्या है? तो उन्होंने बोलेंगे कि भाई सर्वर से नको। अरे मिस्टर CEO सर खुश जाते हैं, बोला 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर एक्स बेच के, और सर्वर्स कितने जरूरी है मेरे से ज्यादा किसको मालूम, आप बोल रहे हैं सर्वर से हटा दो। उसके बजाय क्या है, उन्होंने बोलते हैं मैं आपको सर्वर्स की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ। नाइस ना, सर्वर्स की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म। जैसे मिसाल के तौर पे आपको डेटाबेस मेंटेन करना है, डेटाबेस मेंटेन करने क्या करते हैं, तो मिस्टर CEO बोलते हैं कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल है मेरा, तो मैं सीक्वल इंस्टॉल करता हूँ, सीक्वल इंस्टॉल करके एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, फिर उसमें डेटाबेस सर्वर क्रिएट करता हूँ, उसमें डेटाबेसेस क्रिएट करता हूँ, फिर टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके ओके ओके। उन्होंने बोलते हैं आपको सर्वर में सीक्वल इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मैं आपको एक सर्विसेज दे देता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग मी, राइट? सो on the other side, what Mr. CEO used to do, he used to maintain a server. On top of that server, he used to install the client, database client, जिसमें उन्हें database server create करते थे और databases create करते थे। मान लो अगर PL SQL है तो उन्हें Oracle PL SQL इंस्टॉल करते थे, फिर उसमें डेटाबेस क्रिएट करते थे। अब व्हाट द मिस्टर वाई इज टेलिंग इज कि आप ये सब मेंटेन मत करो, आप बस आओ मेरे को बोलो कि मेरे को डेटाबेस की सर्विस होना, मैं आपको पूरा बना बनाया देता हूँ। डेटाबेस क्रिएट करना है ना, एक क्लिक करो, आप डेटाबेस क्रिएट करा दो। कितना मजे की चीज है। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर देते बोल रहे थे आप, वो क्या बोले थे? अगर आपका SAP है सर, तो कई SAP के सॉफ्टवेयर तो मैं यूं ही दे देता हूँ, अगर आपका बना के देना है तो वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो। हाँ हाँ मेरा SAP का है, तो देन आप कहीं कुछ SAP का लाइसेंस पे कर रहे हैं सर, मेरे को पे करो आप सॉफ्टवेयर में, आपको डिस्काउंट भी मिलता और साथ साथ ही साथ आपको SAP का पूरा सॉफ्टवेयर ही मिल जाता। दिस इज अटर नॉनसेंस, बोलते मिस्टर CEO, इतने साल से मैं पैसे वेस्ट कर रहा था। आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो मिस्टर वाई बोलते हैं हम तरह तरह की शक्ल में आते, या तो एज्योर क्लाउड की शक्ल में आते, AWS की शक्ल में आते, गूगल क्लाउड की शक्ल में आते। तो आई थिंक दिस इज आंसरिंग द क्वेश्चन जो अभी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच क्लाउड। ये बैकबोन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। It is nothing but giving the solutions on rent so that any company can maintain their softwares. Now, if you look at my next slide, आपको अंदाजा हो जाता कि what I am talking about. एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ,
तो उसका नेटवर्किंग भी मेरे को देखना है, स्टोरेज भी मेरे को देखना है, सर्वर्स तो मेरे को देखना ही देखना है, वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट द हाइपर वी जो अभी मैं बोला हाइपरवाइजर, ओएस भी मेरे को देखना है, फिर मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटाबेस भी मेरे को देखना है, फिर एप्लीकेशन जो एंड प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन बोलो या सॉफ्टवेयर, वो भी मेरे को देखना है। दिस इज यू मैनेज, मतलब ऑन प्रेमाइज, ऑन प्रेम बोल सकते हैं इसको, ओके, ऑन प्रेम है ये, बट कंप्लीट सोल्यूशन ऑन प्रेम है। बट अगर मैं क्लाउड पे जा रहा हूँ, देखो ये आइकन है ना, इसका मतलब ऑन प्रेम, ये क्लाउड है। तो यहाँ पे 3 जो सेक्शंस हैं, इट इज मैनेज बाय वेंडर, जो भी वेंडर हो सकता। तो अब ऑरेंज में जो है वो अब हमारे देखना है, ग्रीन में जो है वो क्लाउड वाले देखते हैं। मान लो कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सर्वर्स आते हैं पिक्चर में, सर्वर्स में नेटवर्किंग क्लाउड वाले देख लेते हैं, स्टोरेज मतलब मान लो कि मेरे को सी ड्राइव में जगह कम हो रही, बढ़ाना है, सीधे सीधे जाके क्लाउड वाले को बोलना, उन्हें 1 2 3 क्लिक करो, बोलता है स्टोरेज बढ़ जाता। एक एक्स्ट्रा सर्वर होना है, 5 मिनट में एक नया सर्वर क्रिएट हुआ था। वर्चुअलाइजेशन है, मतलब हाउ टू मैनेज माय सर्वर्स, वो भी उसी तरह हो जाता। बट उसमें कौन सा वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर डालना है, लाइसेंस वर्जन है, नॉन लाइसेंस्ड है, वो मेरी जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती। डेटा मेंटेन करने का कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती, उसमें एप्लीकेशन मेंटेन करना कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती। तो यहाँ पे 50-50 हो गया। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता मालूम है, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद से देते हैं। अभी बोला ना मैं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी तरफ से देते हैं, मिडिलवेयर और रन टाइम भी अपनी तरफ से देते हैं। बस डेटा मेरे को मैनेज करना है और एप्लीकेशन मेरे को मैनेज करना है। ऑब्वियसली एप्लीकेशन मतलब मेरा सॉफ्टवेयर एक्स मेरे को मैनेज करना है। बट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जैसा बोला ना मैं, एप्लीकेशन भी उन्हें दे देते हैं। जैसे मान लो कि मेरा एसएपी एप्लीकेशन था, उन्होंने बोलते हैं एसएपी आप हमारे पास पड़ा हुआ है, आप लियो, सब्सक्राइब करो, आपको 1 मंथ के लिए एक्सेसिबल रहता, अपना सॉफ्टवेयर रन करो, जो भी क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पे राउट करो। दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक अपने टर्मिनोलॉजी में एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वॉच माय स्क्रीन एंड हियर माय वॉइस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ये एग्जांपल सुनने के बाद, एक बंदा है जो अपने घर में रह रहा है, इंडिपेंडेंट हाउस में, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट हाउस है, आरसीसी का घर है, जिसमें उन्होंने रह रहे हैं। रहने के बाद क्या हुआ कि वन फाइन डे कुछ उनका वॉशरूम में नल टूट गया। तो व्हाट ही हैज टू डू सर, खुद से फोन उठाना, खुद से प्लम्बर को बुलाना, खुद से जिम्मेदारी लेके वो नल रिपेयर कराना, और कॉस्ट जो भी आता खुद की जेब से जाना, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब इंडिपेंडेंट हाउस में जब आप रहते तो सारा मेंटेनेंस किसके जाता, वो जनाब के सर जाता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो उन्होंने फ्लैट में चले गए, एक 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, एक फ्लैट है, उसमें चले गए। वहां पे भी सेम सिचुएशन हुआ, वॉशरूम का नल टूट गया। तो अब उन्होंने क्या करेंगे, खुद से फोन उठा के प्लम्बर को बुलाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोलेंगे फ्लैट के ओनर को फोन करके कि भाई मैं मेंटेनेंस का जो मंथली 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 रेंट दे रहा हूँ, नहीं हाँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप आओ और करो मेरा प्लम्बिंग का काम। तो उन्होंने आते नहीं खुद, उन्होंने प्लम्बर को बुलाते, उन्होंने टेक केयर कर लेते वो काम का। तो अब डिफरेंस समझ रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट हाउस में क्या था कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय ओन एक्सपेंसेस, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय ओन बॉन्कर्स, जो भी इश्यूज आ रहे थे आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय ओन। सेकेंडली, फ्लैट में जाने के बाद आई हैड टू पार्शियली ओन इट। अब मान लो सेम पर्सन गया गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, अब वहां पे नल टूटा तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फोन उठा के बोलने की भी जरूरत नहीं, खुद से आके रिपेयर कर लेके चले आते। अब दिस इज व्हाट इट इज, जो इंडिपेंडेंट हाउस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, जो फ्लैट है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, जहां पे आपको पार्शियली देखना पड़ता था, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स में कंप्लीटली द अदर पर्सन ओन्स इट, नॉट इवन यू। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आता भाई, ऐप सर्विस। एज्योर में इसको ऐप सर्विस बोलते हैं, SaaS में क्लाउड सर्विस रहता, IaaS में वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। 3 मेन पिलर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इन एज्योर। ऐप सर्विस किस लिए यूज होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाले सेक्शन में, ये बीच वाले में, दिस वन।
ओके इसमें ऐप सर्विस यूज होते हैं, इसमें क्लाउड सर्विसेज यूज होते हैं, इसमें सर्वर्स यूज होते हैं। ठीक है, any questions? I think this is more than enough for today in terms of cloud computing, because I think I don't have much time. We are already on top of the hour, so I wanted to show a demo on Azure, but we will have a different session altogether जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ Azure के डिस्प्ले स्क्रीन में Azure के बारे में बात करूँ, और we will have a lot of discussion on Azure particularly. but जितना भी knowledge आज शेयर हुआ DevOps के रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आगे चल के आपको जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये एग्जांपल्स, ये नॉलेज से रिलेट करिए। आई इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू Q&A। अब आप पूछिए जितने सवाल पूछना है। दिस नो सिली और नॉनसेंस क्वेश्चन, आपको जो पूछना है पूछिए। सर तो बेसिकली अपन क्लाउड को डिफाइन कैसा कर रहे हैं सर? एक सॉफ्टवेयर अपने को पहले से दिया हुआ है, मींस उसको अपन कंप्यूट कर रहे हैं सर, या फिर मींस? जैसा मैं अभी आपको बोला, 3 तरीके जी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये वाला डायग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्लाउड को यस आप जब भी डिफाइन कर रहे हैं तो ये 3 चीजों को कंटिन्यू बोलना पड़ता। ओके ओके, ये 3 मिलके क्लाउड कंप्यूटिंग बनते हैं। ओके सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड Oracle? SQL, अब देखिए सर, ये दोनों डेटाबेसेस हैं। अब दिस इज सेम लाइक टेलिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HP लैपटॉप एंड Dell लैपटॉप। ठीक है, दे सर्व द सेम रिक्वायरमेंट बट अपने अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस अलग रहते हैं। सिमिलरली सीक्वल का भी और ओरेकल का भी अपना एक तरीका है क्वेरी लिखने का, बट डेटाबेस मेंटेन होते हैं बैकएंड में सिमिलर वेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, दीज 2 आर सीक्वल एंड ओरेकल। ओरेकल का जो डेटाबेस है उसको जनरली PL SQL भी बोलते हैं। Sayyid Vikhar, so for landing a job, you can ask questions rather than typing, na? Why are you feeling shy to ask the questions? For landing a job in cloud, not DevOps necessarily, what are the skills? Yeah, walaikum salam. जी भाई। सर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मेरे को AWS का कोर्स कर लो फिर जॉब पक्की है, तो इज इट ट्रू और नॉट? I'm not selling jobs here. So job पक्की है नहीं है, that goes only after your technical skills. But AWS तो मार्केट में बहुत ज्यादा छाया हुआ है, because that was one of the very first clouds. क्या हुआ था बट कि मेरे जब, को कोडिंग नहीं आता है कुछ। हाँ तो मेरे को कौन सा आता कोडिंग? आई स्टार्टेड माई करियर एज ए जावा डेवलपर, तो इसलिए कोडिंग आता, बट पिछले 4-5 साल में ऐसा कोडिंग का कोई टास्क तो नहीं आया मेरे को। कोडिंग जरूरी नहीं है सर। ओके सर, तो सर इसके लिए कितना टाइम लगता है एक कोर्स के लिए AWS? अब इट डिपेंड्स, ट्यूटर आपको कितने महीने में सिखा रहा, दैट गोज बाय सेइंग जितना आप प्रैक्टिस करें उतना टाइम लगता। सर मतलब बट 2 मंथ्स में हाँ, हो जाएगा क्या सर? आई थिंक सो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि भाई सर्टिफिकेशन करना। Sayyid Vikhar, I'm coming to the second question of yours. Certification play a very vital role on in today's market. See, मैं अपनी कंपनी में कई सारे इंटरव्यूज करता हूँ, हर हफ्ते इंटरव्यूज होते रहते हैं। The only thing that would make your resume isolated is the certifications. ऐसा भी नहीं होना कि 6-7 सर्टिफिकेशन लिख दे रहे हैं आप अपने रिज्यूमे में, ये करा वो करा ये करा वो करा, बात करते ही स्टार्टिंग के 2 मिनट में मालूम पड़ गया इन्हों तो खाली बोलने के है और कुछ नहीं है बोल। ऐसा भी नहीं रहना। जो आप लिखे रिज्यूमे में वो आप डिपिक्ट भी क्या बोलते हैं, डिपिक्ट भी करना सॉरी, डिपिक्ट भी करना अपने कॉन्वर्जेशन से। सो सर्टिफिकेशन कर लो सर आप AWS में जब भी आप ट्रेन होना चाह रहे हैं। तो आई थिंक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या ऐसा कुछ, solution associate, DevOps solution associate is the certification, basic certification in AWS that you can crack. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। Hello, sir. जी फॉर like you said कि coding is not really important, so like cloud computing is more like configuration. For example, when we install Java, we'll have to set a runtime environment and all that. So cloud computing will be more about that, or
it will be more about like we'll have to create a package and then we'll have to write a code to set up an application. No, no, no. देखिए सर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोडिंग और जो भी है वो दैट एंड्स एट स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्ट्स लिखना आपको जरूरी है. स्क्रिप्ट्स की जानकारी क्यों जरूरी है बोले तो, मान लो कि आप विंडोज पे काम कर रहे हैं. अब विंडोज में काम करते वक्त मेरे को ऑटोमेशन करना है. ऑटोमेशन कैसा होता है सर विंडोज में पॉसिबल? या तो मैं बैच फाइल लिखूं या तो पावरशेल लिखूं. करेक्ट. तो अगर मेरे को वो नहीं आता तो मैं ऑटोमेशन कैसा कर सकूंगा? तो मेरे को कम से कम स्क्रिप्टिंग आना, ताकि मेरा ऑटोमेशन का स्किल्स जो भी है वो एनहांस हो सके. सिमिलरली मैं अगर लिनक्स में काम कर रहा हूँ तो मेरे को जो कमांड्स हैं उसी कमांड्स को थोड़ा आगे बढ़ा के बैश स्क्रिप्ट या कॉर्न शेल स्क्रिप्ट, पर्ल स्क्रिप्ट, ये दोनों स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट तो भी आना. वो बहुत आसान है. ऐसा नहीं है कि आप अच्छा स्क्रिप्टिंग बोल दिए हो. नहीं नहीं नहीं. कोडिंग एक बहुत बड़ा पहाड़ है. स्क्रिप्टिंग बस एक छोटा सा जंप है. दैट्स इट. स्क्रिप्टिंग आपको 1 वीक में आ जाती. बहुत आसान है. तो स्क्रिप्टिंग आना बहुत जरूरी है. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, कोडिंग इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. हाँ, अगर आपके रिक्वायरमेंट में ऑटोमेशन है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. एग्जांपल ये है कि भाई आपका मैनेजर आके बोला कि अली, हर हफ्ते ये फोल्डर में साइज बढ़ते जा रहा, कुछ तो भी करो. सर्वर आपकी जिम्मेदारी है. साइज बढ़ते जा रहे हैं, फाइल्स क्रिएट होते जा रहे हैं, साइज बढ़ते जा रहे हैं. तो आप क्या करते हैं? हर हफ्ते सुबह सुबह लॉग इन करते हैं आंख मलते हुए, तो पूरे जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है वो डिलीट करते हैं. अगले हफ्ते फिर सुबह उठते डिलीट करते हैं. फिर तीसरे हफ्ते फिर सुबह उठते डिलीट करते हैं. आप बोलते हैं अरे क्या है भाई, हर फ्राइडे मॉर्निंग मेरी ऐसी जा रही. इससे बेहतर मैं क्या करता हूँ, एक ऑटोमेशन क्रिएट करता हूँ, जॉब क्रिएट करता हूँ, जिसमें खुद ब खुद वो ऑटोमेशन ये चेक करना कि whenever there are files getting created choking the space, डिलीट कर दो, पुराने फाइल्स डिलीट कर दो. अब ये क्या है सर, आपकी रिक्वायरमेंट में ऑटोमेशन आया, और ये रिक्वायरमेंट को whenever वाली जो कंडीशन है ना, ये स्क्रिप्टिंग से होती. तो अगर आपके ऑटोमेशन को एनहांस करना है तो स्क्रिप्टिंग नॉलेज इज मस्ट एंड शुड. होप दैट आंसर्स. ओके सर, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले AZ 900 का जो कोर्स रखे ना सर, वो अपन कितने भी बार लिख ले सकते हैं सर एग्जाम ऑनलाइन, जो उन लोग लेते एग्जाम AZ 900 का? हाँ, कितने बार मतलब? एक बार पास हो गए तो दोबारा क्यों लिखते हैं आप? मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकेस नहीं पास हुए तो सर? हाँ, तो कितने भी बार लिख सकते हैं. नो इश्यूज. ओके. नो इश्यूज. तो सर और ये यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देखा सर, freecode.org बोल के कुछ वेबसाइट है ना, 3 आवर्स का कोर्स दे रहे हैं देखिए सर उसमें. हाँ तो जो भी नोट्स है ना उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफी हो जाते हैं सर एग्जाम लिखने के लिए. हाँ, हो जाते हैं. मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, examtopics.com. एग्जाम टॉपिक्स. examtopics.com पे से AZ 900 के क्वेश्चंस पढ़ो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं आप इंशाल्लाह. examtopics.com. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. और सर अपन AZ 900 का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद लाइक व्हाट वी विल बी सर, लाइक आर्किटेक्ट नहीं, और? कुछ भी नहीं. वो फंडामेंटल्स है. करना नहीं ओके. करना एक ही बात है. कर लिए तो बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपको डेवऑप्स की फील्ड में आना है तो AZ 400 करना, जिसके लिए AZ 104 या 103 करना जरूरी है. तो आप सिर्फ AZ 400 अकेला नहीं कर सकते. AZ 104 करना, फिर AZ 400 करना. तो आपके नाम के आगे एक बैच आ जाता कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर बोल के. नहीं, हमको डेवऑप्स की फील्ड में लाइक AI इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना है सर हमको. हाँ, तो AI का भी एक सर्टिफिकेशन है. आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके सर्च करो सर्टिफिकेशन. उन्हें खुद बताता है कि व्हाट इज द रोड मैप. ओके. किस सर्टिफिकेशन के लिए क्या करना, कौन सा करना जरूरी है, तब जाके आपको ओके. सर्टिफिकेशन मिलता है बोल के. वो उन्हें खुद ही बताता है आपको वहीं पे आर्टिकल. ओके. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस? Hello. Yep. Mudassar bhai, can you please explain about Azure Kubernetes services? Azure Kubernetes services is an ocean. So I'll try to explain the fundamentals of it. See,
AKS में क्या होता कि AKS इन इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड। तो वहां पे आपको ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, IaaS, PaaS और SaaS, ये सबको हटा के आप AKS डाल दो, बस खत्म। ओके। तो AKS में क्या होता कि अम, आपको वहां पे दिस दिस थिंग कॉल्ड कंटेनर्स। ओके। अब जैसे मैं आपको बताया ना कि बिल्ड करने के बाद एक आर्टिफैक्ट बनता, करेक्ट। तो आर्टिफैक्ट को रिप्लेस करो कंटेनर से, इमेजेस से, सॉरी सॉरी, इमेजेस से। तो आर्टिफैक्ट्स को रिप्लेस करो इमेजेस से। तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी दुनिया पढ़ा रहे मुझे सिर पे। नहीं, AKS में एंटर होने के लिए आपको नया ड्रेस पहनना पड़ता। वो दैट ड्रेस इज कि आप जब बिल्ड करेंगे तो आर्टिफैक्ट जब प्रोड्यूस होता, तो अब इसका आर्टिफैक्ट का नाम है इमेज। इमेज को अब नॉर्मली किसी भी सर्वर में नहीं डाल सकते। जैसे आपके पास मान लो इमेज है और आप बोल रहे हैं मेरे को विंडोज सर्वर दियो, मैं इमेज रन करके बताता हूँ, कोई भी हंसते हैं आपके ऊपर। आप बोल रहे हैं कि पास सर्विस दियो मेरे को, मैं इमेज रन करके बताता हूँ, इट वोंट वर्क। इमेज के लिए रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म उसका खुद का रहता है जिसको बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर में इमेज रन होता। अब वो इमेज क्या है, आपका सॉफ्टवेयर एक्स ही है, बट इट्स इन द न्यू ड्रेस, नए ड्रेस में है वो। तो इमेज को आप कंटेनर में रन करेंगे। कंटेनर, ये सारी दुनिया है AKS की। पहले ये डॉकर में थी। ओके। ये डॉकर के जरिए आप इमेजेस क्रिएट करते हैं। फिर डॉकर वाले क्या करे, पहले डॉकर वाले सिर्फ इमेजेस क्रिएट करके हेल्प हेल्प करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो लोग क्या करे, अच्छा हमारे पास पब्लिक सिर्फ इमेज क्रिएट करने की आ रही, कंटेनर्स के लिए कहीं और जा रही, तो डॉकर वाले डॉकर स्वार्म बोल के इंट्रोड्यूस करे, जिसमें वो लोग खुद प्लेटफॉर्म दे रहे हैं विच इज कंटेनर्स। अब मान लो कि आप डॉकर के थ्रू इमेज क्रिएट कर दिए, लोग क्या कर रहे थे, वहां से क्यूबरनेटिस की तरफ जा रहे थे। क्यूबरनेटिस में कंटेनर्स क्रिएट कर रहे थे। कंटेनर्स इज नथिंग बट एन एनवायरनमेंट। कंटेनर्स में पॉड्स रहते हैं, PODS, पॉड्स। पॉड्स विल बी नथिंग बट अ रूम इनसाइड अ हाउस। एक पॉड में एक एप्लीकेशन, दूसरे पॉड में दूसरा एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन रन कर सक रहे हैं AKS में, एक नए एड्रेस के जरिए। और यहाँ पे नेटवर्किंग आपको मैनेज करना है, प्लेटफॉर्म आपको मैनेज करना है, DNS सर्वर्स आपको मैनेज करना है। तो AKS में ओवरऑल सब कुछ आप ही को मैनेज करना पड़ता। IaaS में क्या रहता है, सर्वर्स का स्टोरेज का क्लाउड वाले देख लेते। पास में क्या रहता, वो लोग पूरा सर्वर से खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो लोग देख लेते। बट क्यूबरनेटिस में आपको मैनेज करना पड़ता। बट अब ये देख के क्या करे मालूम, क्लाउड वाले इन लोगों का खुद अपना क्यूबरनेटिस सर्विस प्रोवाइड करे। अमेजोन वाले EKS निकाले, क्लाउड एज्योर क्लाउड वाले AKS निकाले। तो अब AKS में क्या रहता, अब मान लो कि अब आप AKS चूज करें, एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस। AKS में मोर और लेस सेम टास्क है, बट उसमें से कई चीजें एज्योर बोलता है कि मैं करके देता हूँ। समझ रहे, एसेंस समझो आप। जब आप समझ गए कि चीज क्या करती इन एंड आउट, तो क्लाउड वाले आके बोलते हाफ ऑफ द वर्क वी विल डू इट सर, आओ ना हमारे पास, हमारे को सब्सक्राइब करो, ऐसा। ठीक है। एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस इज नथिंग बट आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट बोल के मैं एंड करता हूँ। एडवांटेज ये है कि मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में कई सारे पॉड्स हैं जो आपका सर्वर एक्स रन कर रहे हैं। कल के दिन ट्रैफिक इतनी आ रही कि वो कंटेनर संभाल नहीं सक रहा, तो इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, आप नया कंटेनर स्पिन अप कर सकते हैं और ट्रैफिक को इक्वलाइज कर सकते हैं विद इन नो टाइम। तो इसके जरिए क्या हो रहा मालूम है, आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ रही है और एप्लीकेशन स्मूथली चल रहा। अब सर्वर्स में करना है, समझो IaaS में आपको नया सर्वर डालना पड़ता, सेम इमेज के थ्रू वो सर्वर क्रिएट करना पड़ता, करके फिर वो DNS में ऐड करना पड़ता, DNS में ऐड करके फिर आपको ट्रैफिक राउट करना पड़ता। तो इट इज इजी बट नॉट एज फास्ट एज व्हाट Kubernetes is providing. So that's a different world altogether. Okay. इसीलिए मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा। There was one question from I think मिराज अहमद, इसीलिए मैं डॉच कर रहा था वो क्वेश्चन, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड Kubernetes आर नॉट वेरी मच सेम। बट डेवऑप्स समझ में आया आपको, किस तरह से एक एप्लीकेशन रन होता वो समझ में आया आपको, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी समझ में आया था, Kubernetes भी समझ में आया था। और आज के जमाने में Kubernetes बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वाइडली बिकॉज इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
Any other question, please? Where can I find this recording? You will have to reach out to Shoaib bhai in the WhatsApp group. Okay. There's a question: what continuous testing and automation testing, how it work in cloud and DevOps, sir? Okay. So let us understand what is continuous testing. Continuous testing का मतलब क्या है? Continuous testing का मतलब ये है कि मान लो कि मेरा एप्लीकेशन X जो किसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो गया, QA एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो गया, तो QA टीम क्या करते हैं? ऑटोमेशन सूट्स लिखते हैं, ओके, टेस्टिंग सूट्स। अब उनकी खुद की लैंग्वेज रहती है, या तो वो लोग हम प्रोट्रैक्टर में लिखते, सेलेनियम में लिखते, या फिर टॉस्का यूज करते, सो मेनी टूल्स इन द मार्केट। वो लोग ऑटोमेशन सूट लिखते हैं। वो ऑटोमेशन सूट को मैं क्या करता हूँ, पाइपलाइन में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मतलब कि जब कभी भी मैं कोड पुल कर रहा हूँ, डेवलपमेंट सर्वर में डाल रहा हूँ, वही आर्टिफैक्ट क्यूए में डाल रहा हूँ, क्यूए में डालने के बाद में नेक्स्ट टास्क ट्रिगर होना, दैट इज नथिंग बट रनिंग द ऑटोमेशन सूट्स। तो ऑटोमेशन सूट क्या करता, एप्लीकेशन को एक्सेस करके हेल्थ चेक करता कि भाई जो जो रिक्वायरमेंट सूट्स में टेस्टर लिखे थे वो पूरे टेस्ट केसेस पास हो रहे नहीं हो रहे। दैट इज योर कंटिन्यूअस टेस्टिंग। मतलब एज इन व्हेन जो भी एप्लीकेशन क्यूए एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो, तेकिच टेस्टिंग हो जाना खुद ब खुद। इससे क्या हो रहा, क्यूए टेस्टिंग वालों की जॉब जा रही। ठीक है, तो क्यूए टेस्टर्स सिर्फ ऑटोमेशन सूट्स लिख देते हैं, खत्म। एक बार लिख दिए, तो पहले के जमाने में 4-4 क्यूए टीम होती थी। एक एक पर्सन ये पेज टेस्ट करता था, दूसरा पर्सन वो मॉड्यूल टेस्ट करता था। अभी क्या हुआ, 2 लोग हैं, 2 लोग पूरे टेस्ट केसेस लिख दे रहे हैं, एक सूट क्रिएट कर रहे हैं, वो सूट पाइपलाइन में इंजेक्ट हो जा रहा, खत्म। खुद ब खुद टेस्टिंग हो जा रही। अगर कुछ फेल हो रहा तो ये लोग मैन्युअली जाके देखते क्या हो रहा क्या नहीं, देन दे गेट बैक टू द डेवलपर कि भाई ये बग है, ये इशू है, एटसेट्रा। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? सर ये माइक्रोसॉफ्ट में एज्यूर अकाउंट बनाते हो तो ने कार्ड डिटेल्स पूछ रहा सर, कार्ड डिटेल्स भी एंटर करना पूरे, लाइक कार्ड नंबर। वो एक सैड ट्रूथ है, जहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स डालना है। अगर स्टूडेंट अकाउंट है तो आई थिंक इट वोंट आस्क, बट देखो कार्ड डिटेल्स डाल दो, कुछ मिनिमल 2 रुपए या 3 रुपए कट होते हैं आपके,